Dear students, in the previous lecture we had started with the chapter Environmental Issues. We had discussed that what is pollution and what are the major types of pollution. We have also discussed that what were pollutants, and we discussed that some of the pollutants were natural and some of the pollutants were anthropogenic. So here we are beginning with the first kind of pollution that is the most prevalent in the whole world, and that is the air pollution. So what is air pollution? Air pollution is addition of harmful chemicals, gases or suspended particles in the air, in the environment, which are going to ultimately harm the humans, they are going to harm the vegetation, and they are going to harm all the animals, because the air pollution is the leading cause of several respiratory problems. So here we are going to discuss first of all the definition of air pollution. The air pollution is the addition of particles. Addition of particles over here is small suspended particles who are having hardly a size of 1 micrometer. So such particles are added, or addition of some gases or addition of the chemicals. Harmful chemicals like SO2, NO2, these are added into the atmosphere that has a potential to adversely affect human health. So that is going to affect the human health, it is going to affect the animal health, and it is going to affect the vegetation. So air pollution has several causes, has several effects. These effects are on humans also, effects are observed on animals also, and the effects are observed on the vegetation also. So this is known as the air pollution. So air pollution is addition of harmful gases, suspended particles and chemicals into the air, which is going to adversely affect our environment in such a way that ultimate effect will be on the humans, the effect will be on animals, and the effect will be on the vegetation. So air pollution is both natural and anthropogenic. So there can be reasons for natural air pollution also and artificial, that is man-made air pollution also. However, anthropogenic air pollution, hardly it contributes to 1 to 2% of the pollutants, whereas most of the pollutants are natural air pollutants. Students, what are pollutants? Pollutants are the substances which cause the pollution. So they are known as pollutants. So here, air pollutants coming directly from the pollution source. So if a pollutant is directly coming from the source itself, then it is known as the primary air pollutant. So primary air pollutant is such a pollutant which is being emitted directly from the source. The source can be automobile also, or the source can be either volcanic eruption. In fact, it is formed without any modification. कोई भी मॉडिफिकेशन के बिना ही जो सोर्स में से डायरेक्ट रिलीज हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं. फिर आते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. Secondary air pollutant are more hazardous, more harmful than the primary air pollutant. सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट मतलब ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिक्सचर या उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. जबकि व्हीक्यूलर एग्जॉस्ट में से डायरेक्टली अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो वो क्या हो गया? इट इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट. We are going to discuss about which primary pollutants are there and which secondary pollutants are there. Now, what are the causes of air pollution? We know that air pollution is a leading problem for the environment. But what can be the causes of air pollution? So, causes. The first cause is the combustion of natural gas, or you can say petroleum, coal, wood, aircrafts, automobiles, railways and many more. So all these combustion of the fuels, combustion of the coal, combustion of the wood, these all things are obviously going to be incomplete combustion. And as there is incomplete combustion, there is release of SO2, NO2 and carbon monoxide and such
harmful gases are going to be emitted out. So these gases in a concentration beyond the limit are going to be harmful to us. So first of the most major source is combustion. Second is metallurgic processes. The metallurgic processes will be releasing different types of mining dust as well as zincs and oxides and many such substances like sulfides that are going to be harmful to us. So metallurgic processes are also a source of air pollution. Chemical industries, the industries which are indulged in making the pesticides, making of the fertilizers, and such industries are also one of the cause of, that is the artificial man-made cause of the air pollution. The next are cosmetics, which also lead to pollution. Cotton textile processing industries, the industries for the making of the cotton textile industries are also the cause of pollutants. Welding, stone crushing, these are also some of the examples. Like welding activities are responsible for air pollution. Asbestos or marble companies, marble factories, cutting of the stones, these all also contribute to the air pollution. These all are artificial sources, that is man-made sources of air pollution. But there even are some of the natural pollutants, and the natural pollutants include pollens, spores which are released, and the volcanic gases. The volcanic eruptions also contribute to a major natural pollutants. So here we have discussed some of the causes like combustion, metallurgic processes, chemical industries, cosmetics, cotton textile processing industries, welding, stone crushing, etc. are some of the causes of the air pollution. However, major contribution of the air pollution is through the automobiles. So they are mainly causing the air pollution. Now we will discuss about some of the primary air pollutants in detail. So we have discussed that what is air pollution. We said that addition of the dust particles or suspended particles or gases or harmful chemicals in the air causes damage to the environment and thereby affects the human health, it affects the vegetation and even affects the health of the animals. We had discussed that the air pollution is due to the pollutants. The pollutants which are the substances which cause the pollution. So we have discussed about the air pollutants that there can be different sources of air pollution. Like combustion was one of the reason, metallurgic activities, mining activities, stone crushing, welding, cosmetics making, these all were some of the causes of the air pollution. Now we are talking about precisely the pollutants which cause the air pollution. So, the pollutants which are the major causes of the air pollution that were divided into two types. One were primary air pollutants and the another were secondary air pollutants. Primary air pollutants means the pollutants which were directly released from the source. That is, they are naturally present without any modifications. Okay. Whereas secondary air pollutants were formed by the mixing of several primary pollutants. मतलब primary pollutants के कई combination से secondary pollutants बनते हैं. तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले primary air pollutants की. तो primary air pollutants में सबसे पहला आ जाता है particulate matter. Particulate matter means the small particulate substances which are being released in the air. And these small particulate suspended substances are the major causes of the air pollution because they can lead to severe respiratory problems. तो ये जो particulate matter है उसमें include होता है soot. Soot किससे बनता है? जब carbohydrates का incomplete combustion होता है so there is formation of the black colored gas. You might have observed that burning of certain substances releases that black smoke. So that consists of the soot, fly ash, dust, spores and pollen grains. All are included in the particulate matter. Soot, fly ash, dust as well as spores and pollen grains. This particulate matter जो है वो दो तरह का होता है.
एक होता है सीटेबल्स एंड मतलब जो सेटल हो जाता है इसलिए उन्हें सेटलेबल्स कहते हैं, और एक होता है सस्पेंडेड। सेटलेबल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो साइज में थोड़े बड़े हैं एंड देयरफॉर इन अ ड्यूरेशन ऑफ अ डे दीज पार्टिकल्स आर गोइंग टू सेटल डाउन। For example, those which are larger than 10 micrometer means in a day or two they are going to settle at the bottom, that is settle on the surface. Whereas suspended जो होते हैं वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इसीलिए क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स की साइज 10 माइक्रोमीटर से कम होती है और ये 1 या 2 दिन में सेटल होते नहीं है। मतलब जब वो सेटल नहीं होते उसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे एयर में ज्यादा प्रिवेलेंट रहते हैं, एयर में ज्यादा टाइम तक प्रेजेंट होते हैं, और जो पार्टिकल्स एयर में ज्यादा टाइम तक प्रेजेंट होते हैं वो इनहेल भी जल्दी हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉज करते हैं। तो ये जो सस्पेंडेड मतलब एक हो गए सेटलेबल्स जो सेटल हो जाते हैं 1 दिन में, और एक हो गए सस्पेंडेड जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल नहीं होता जल्दी। इसीलिए ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एरोसोल, डस्ट एंड मिस्ट। एरोसोल जो होते हैं वो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमारे परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स में जो रिलीज होते हैं वो होते हैं एरोसोल ड्रॉपलेट्स। फिर आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स आर मोर देन 1 माइक्रोमीटर इन द साइज, एंड द थर्ड वन आर द मिस्ट जो होता है वो लिक्विड ड्रॉपलेट जैसा होता है एंड दैट इज ऑल्सो मोर देन 1 माइक्रोमीटर इन इट्स साइज। तो एरोसोल, डस्ट, मिस्ट ऑल ऑफ देम आर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नाउ as I said, that soot that is produced by the burning of the incomplete combustion of carbohydrates, वैसे ही फ्लाई एश प्रोड्यूस होता है, डस्ट जो है वो नेचुरल एयर पोल्यूटेंट आ जाता है, स्पोर्स और पोलन ग्रेन्स भी नेचुरल एयर पोल्यूटेंट्स है। मतलब ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? पार्टिकुलेट मैटर के। सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, नेचुरल पोल्यूटेंट, इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। नेचुरल मतलब पोल्यूटेंट जो प्राइमरी है, यहाँ पे नेचुरल का मतलब यहाँ पे मैं बता दी हूँ कि वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ पे बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। तो जब फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटलर्जिक ऑपरेशन, माइनिंग एक्टिविटी, स्मेल्टिंग, जब जो रॉक्स होते हैं उनमें से मिनरल्स को जब अलग करते हैं तो ये प्रोसेस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। सिगरेट स्मोकिंग is one of the major cause of carbon monoxide, and the last one that is automobiles. Each of them is having its own effect. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है एनवायरमेंट में, हमें ये तो देख लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेस कौन से हैं कि वो कहाँ से रिलीज होते हैं, पर कार्बन मोनोऑक्साइड इफ द कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, as we know that carbon monoxide can attach with the hemoglobin to form carbaminoglobin that is going to reduce the oxygen transport in the body. तो उसकी इफेक्ट ये भी रह जाती है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से डिजीनेस, हेडेक, नोजिया ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। सीवियर केसेस में इट कैन इवन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वैसे तो एक पोल्यूटेंट है, पर कब? ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। और वैसे भी सिंस सेवरल इयर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, एज वी नो दैट वी आर कटिंग डाउन मेनी ट्रीज विच यूज कार्बन डाइऑक्साइड। वो हम कट कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन एनवायरमेंट में बढ़ रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, एंड दैट इज हैविंग सेवरल इफेक्ट्स ऑन द ओजोन एंड ऑल दैट वी नो, एंड इफ इट इज इन एक्सेस इट कॉजेज हेडेक एज वेल एज नोजिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट हो जाता है, पर कब? जब वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है तब। फिर आ जाता है H2S। H2S जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सल्फर कंटेनिंग ओर्स। मतलब जब सल्फर कंटेनिंग ओर्स का ट्रीटमेंट होता है, जब स्मेल्टिंग और ऐसे प्रोसेसेस होते हैं तब रिलीज होता है H2S,
एंड इट इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द रिफाइनरीज। H2S के बहुत सारे इफेक्ट्स वेजिटेशन पर भी होते हैं, जैसे कि क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, नेक्रोसिस ऑफ लीव्स, वेजिटेशन पे अफेक्ट करता है। तो H2S इज वेरी हार्मफुल। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इवन बाय इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन्स, उनका प्रोडक्शन दोनों है, नेचुरल प्रोडक्शन भी है और इनकम्प्लीट कंबशन से भी होता है। एंड इट हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो वेरी मच हार्मफुल टू अवर हेल्थ। फिर आ जाता है सल्फर ऑक्साइड्स। सल्फर ऑक्साइड्स मेनली जो फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बनता है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ द मेटेलिक ओर्स। मेटेलिक ओर्स मतलब जब रॉक्स जो होते हैं उनमें से जब ये ओर्स को सेपरेट करते हैं तो उसके लिए उन्हें गर्म करना पड़ता है, दैट प्रोसेस इज ऑफ स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग के लिए जब आयरन का, कॉपर, जिंक या ऐसे कोई भी ओर्स को सेपरेट करना हो, तब जो मिनरल्स को सेपरेट करना हो, तब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। It is also produced by burning of petroleum, coal, even in thermal power plants and even by the motor vehicles. तो ये सारे सोर्सेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। सल्फर डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है विथ वाटर, इट प्रोड्यूसेस H2SO3 and that is resulting into acid rain. And acid rain, as we know, it is very much harmful for the plants as well as for the humans because it causes several skin related problems in the humans. तो ये आ जाता है एसिड रेन। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट पोल्यूटेंट है जो अभी एनवायरमेंट में रिलीज होता रहता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होते हैं बोथ नेचुरली बाय बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। मतलब कई बार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, तभी भी NO2 मतलब NO और NO2 फॉर्म होता है। इंडस्ट्रीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्रीज में भी ये प्रोड्यूस होता है, इवन इन द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से भी रिलीज होता है, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा मतलब ये जो है सारे पोल्यूटेंट्स, एक है पार्टिकुलेट मैटर है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है हाइड्रोकार्बन्स, H2S, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इसके अलावा fluorides are also one of the pollutant, automobile exhaust is also a pollutant and chlorofluorocarbons जो यूज होते हैं प्रोपेलेंट्स में यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, ये भी एक तरह के पोल्यूटेंट्स हैं। and all these are known to be the primary air pollutants. In the next lecture we will discuss about the secondary air pollutants. Okay students, after discussing about the primary pollutants which included the carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, okay, there were chlorofluorocarbons, fluorides. Some of these are the primary air pollutants. We have also discussed about how they were produced, what were the reasons for how they will be produced, and after their production we have also discussed about some of the effects of them. Now we are discussing about the secondary air pollutants. Students, secondary air pollutants वो होते हैं जो primary air pollutants के साथ combine होके they are going to make an another pollutant. This pollutant, that is secondary air pollutant, ये environment में ज्यादा देर तक रहता है and it is having more hazardous effects on the humans, plants as well as on the animals. तो ये जो है वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले आ जाता है स्मॉग। स्मॉग, व्हाट इज स्मॉग? सो स्मॉग इज मेड अप ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड गैसेस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंस्ड वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर जब कंडेंस होता है तो दैट वाटर व्हेन इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द डस्ट, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द स्मोक दैट इज प्रेजेंट इन द एयर and different types of gases released, that is primary pollutants में जो include हो रहे थे SO2, H2S and NO2। तो जब इनके साथ mix होता है तो बनता है smog। इसीलिए स्मॉग जो है उसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कंसिडर करते हैं। हम इसीलिए उसे कंसिडर करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्योंकि वो किससे बनता है? डस्ट से, स्मोक से और हार्मफुल गैसेस के मिक्सचर से अलोंग विद द वाटर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन से बनता है स्मॉग।
ये जो स्मॉग है वो मेनली दो तरह का होता है। एक होता है क्लासिकल स्मॉग जिसे कहते हैं लंदन स्मॉग, ये नीट के लिए है। और ये जो क्वेश्चन लंदन स्मॉग का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। पर ये लंदन स्मॉग जो है दैट हैज बीन आस्क्ड इन सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एम्स एंड नीट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि लंदन स्मॉग जो है वो कैसे बनता है या तो क्लासिकल स्मॉग कैसे बनता है। तो क्लासिकल स्मॉग जो है वो लो टेम्परेचर पर बनता है। सो एट द प्लेसेस वेयर ऑलरेडी द टेम्परेचर इज वेरी हाई, वहां पे क्लासिकल स्मॉग नहीं बनता। तो it is formed at low temperature and it contains sulfur gases, मतलब H2S और SO2 जैसे gases होते हैं combining with the smoke and dust। तो उसके कंपोजिशन में कौन सी चीजें आ जाती हैं? एक तो सल्फर गैसेस आ जाते हैं, स्मोक आता है, डस्ट आता है। ये जो स्मॉग बनता है क्लासिकल स्मॉग, इट इज नियरली डार्क ब्राउन इन कलर एंड इट इज ओपैक। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन। बनता कैसे है? तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विथ H2S एंड SO2 ओवर डस्ट एंड स्मॉग। तो ये कॉम्बिनेशन से बनता है। किसका कॉम्बिनेशन? तो जब वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होता है, तो दिस कंडेंस्ड वाटर वेपर व्हेन कंबाइंस विद सल्फर कंटेनिंग गैसेस जैसे कि H2S और SO2। सो सल्फर कंटेनिंग गैसेस ऑलरेडी हमने देखा कि ऑटोमोबाइल्स में से रिलीज होते हैं या तो इनकम्प्लीट कंबशन से रिलीज होते हैं। ये जो गैसेस हैं वो कंबाइन किससे हो गए? दे कंबाइन विद द कंडेंस वाटर वेपर। और इनके ये कॉम्बिनेशन when it falls on the dust or smoke that results in the formation of the classical smog or London smog, and this was for the first time formed in London in 1952। मतलब फॉर्म तो हुआ होगा but it was studied and understood for the first time in 1952 और ये लंदन में हुआ था, इसीलिए इसे कहते हैं लंदन स्मॉग। दूसरा जो स्मॉग है उसे कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, इसे लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इट इज फॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर। जो लंदन स्मॉग था दैट वाज फॉर्म्ड एट लोअर टेम्परेचर, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होता है एंड इट इज नियरली ग्रे और येलोइश ब्राउन एंड ओपैक इन इट्स कलर। तो उसका कलर वेरिएबल होता है। ये कलर जो होता है वो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब सोलर रेडिएशन कितने आ रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। सोलर रेडिएशन ज्यादा होते हैं तो उसका कलर ब्राउनिश होता है, सोलर रेडिएशन कम होते हैं तो उसका कलर स्लाइटली ग्रेइश होता है। इसीलिए ग्रेइश, येलोइश, ब्राउन एंड ओपैक। It is formed at high temperature in the towns and cities due to still air, emission of nitric oxide from automobiles and solar energy। तो combination of NO with the different harmful gases will be collectively forming the photochemical smog। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है उसके फॉर्मेशन में सोलर एनर्जी इज वेरी वेरी एसेंशियल, जो अभी मैंने कहा। तो ये किससे बना? दैट इज इन टाउन्स एंड सिटीज वेयर देयर इज स्टिल एयर, मतलब एयर जो है वो ज्यादा मूव नहीं हो रही, स्टिल एयर है और स्टिल एयर के साथ एमिशन हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्रॉम द ऑटोमोबाइल। सो दिस इज गोइंग टू कंबाइन एंड इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, मेनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में ये जो है वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। अब ये जो NO2 है दैट स्प्लिट्स इनटू NO एंड नेसेंट ऑक्सीजन। NO2 जो है ये NO2 स्प्लिट होता है किसमें? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड द नेसेंट ऑक्सीजन में। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मतलब O2। तो एक जो ऑलरेडी फ्री रेडिकल वाला ऑक्सीजन है वो O2 से कंबाइन होता है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनता है ओजोन, दैट इज O3। तो ओजोन जो है वो भी एक तरह का सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हो गया। ये जो ओजोन है इट विल कंबाइन, मतलब ओजोन जो है ये कई जगह पे हार्मफुल रहता है, जैसे कि वेजिटेशन को भी हार्मफुल होता है एज वेल एज ह्यूमंस को भी हार्मफुल होता है। NO combining with hydrocarbons, so different hydrocarbons will be present and as we said they are also released from the automobiles, combining with oxygen, मतलब NO
combining with hydrocarbons, combining with oxygen, results into formation of NO2 and an important secondary pollutant PAN, जिसे कहते हैं पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट। तो पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट भी जो है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में साथ साथ में ओजोन बनता है, PAN बनता है। तो ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, these all types of harmful components are formed in the environment। तो हमने यहाँ पे जो दोनों लिखे हैं, तो ओजोन एक लिख दिया है। तो ओजोन जो है उसके क्या इफेक्ट्स रहते हैं? तो ओजोन जो है वो सेल्स में, मतलब प्लांट सेल्स में क्लोरीन काइमा होता है, तो क्लोरीन काइमा को डैमेज करते हैं। दे कॉज नेक्रोसिस, मतलब नेक्रोसिस, डेथ ऑफ द लीव्स इन मोर टाइम। It also has damage to the textiles, damages the mucous membrane, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है and therefore results into dry throat। तो ये सारे कई सिम्टम्स प्लांट्स पे हैं और कई सिम्टम्स ह्यूमंस पे हैं। किसके सिम्टम्स हैं ये? ओजोन के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, पर यहाँ पे जो ओजोन बन रहा है ड्यू टू दीज ऑल एक्टिविटीज, दैट इज वेरी हार्मफुल। पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट PAN, तो पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को डैमेज करता है और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी वो इनहिबिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट कर रहा है, मतलब सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द होल सेल इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड। तो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म गेट्स डैमेज। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिसीजेस इन ह्यूमंस as well as irritation of the eyes। So these are some of the symptoms that are caused by increase in the concentration of the PAN। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट में सबसे मेजर पोल्यूटेंट है स्मॉग, जो दो तरह का होता है। एक होता है लंदन स्मॉग, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये दोनों सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसीलिए है क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, जो आपने देखा कि वाटर वेपर कंबाइनिंग विथ डस्ट, कंबाइनिंग विथ स्मोक, कंबाइनिंग विथ द सल्फर गैसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्मोक। तो ऐसे जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ओजोन और पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट, ये जब फॉर्म करते हैं तो दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स, प्लांट्स एज वेल एज टू द ह्यूमंस।